hey guys, welcome back to my channel Khushi Begins. So this is me Khushi. So today video is about the questions that asked frequently in Air India, and I got just shortlisted in third attempt in Air India. So how I answer and what they ask, all about that. So let's begin without any further ado. So when I went first time for Air India interview, so I was really nervous, as all the candidates were. Some of were not showing, but I was totally nervous because it is my first attempt in Air India. So I just went there, and then the question in group discussion, the first round was basically group discussion. So group discussion topic was, tell me about which season you prefer, monsoon or summer, as they find the weather is really good outside. They said okay. It was a frequent question, not just a repetitive question. It was a frequently asked question. Many girls were there, and the HR said start with this girl, and like we all are sitting there in semicircle like this. So start from there, and I was mid of the semicircle. So जो गर्ल्स शॉर्टलिस्टेड हुई थी उस टाइम पे, वो मैं आपको बता देती हूँ और उन्होंने कैसे आंसर करा था, बिकॉज ऑन दैट टाइम आई वॉज नॉट शॉर्टलिस्टेड. सो अनफॉर्चुनेटली क्या था उनका आंसर was that I really like monsoon because of the weather, because of the rain, and I like to eat pakoda. They were using the term pakoda here, so it is usual. You can also use it if it's required or if it's asked, so you can also use it. So they were saying I really like pakoda and I really like to eat this, that, many dishes they were saying, and it was just a fun topic, like everyone enjoying it. Okay, so I also said I like summer because of some reasons. I like summer, so I was not shortlisted on that day. Then what happens next? Then I went for second time for the Air India interview. So on second time, the group discussion topic was love marriage versus arranged marriage. Some of girls, then I initiate, I remember. Then I said, ma'am, I would like to initiate the topic. Then other girl also saying, ma'am, I would like to start. So ma'am give the chance to that girl. Then she was talking about love marriage, and two girls were selected on that time, two or three girls maybe. So I was not shortlisted on that day also, on my second attempt. So selected on that day. उन्होंने कैसे आंसर करा, क्या था? So उनका आंसर ये था, I would like to prefer arranged marriage because arranged marriage में जो आपकी फैमिली होती है and फैमिली इम्पॉर्टेंट है, and ऐसे एक आंसर था काफ़ी ज़्यादा फैमिली करके. So it was also good. जो सेकंड गर्ल थी उन्होंने मेरे को रिमेंबर है आंसर करता है, I would like to choose love marriage as love marriage is really before marriage जो आप जान लेते हो लोगों को, सो वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी सिलेक्ट हुई थी. मेरा आंसर भी ऐसे ही था. सो मैं उस दिन शॉर्टलिस्ट नहीं हुई. आई वेंट फॉर थर्ड अटेम्प्ट इन एयर इंडिया. So on that time I was a little nervous, not that much of nervous because मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा, इंडिगो और एयर इंडिया दोनों. Was that, tell me if you getting a chance to change something in national animal, then what it will be in your perspective. And उन्होंने ये बोला था. Then उन्होंने बोला you don't have to use domestic animals like dog, cat, ये सब नहीं बोलना है आपको. You have to use wild animals. So wild animals में जो भी है वो आपको आंसर करना है. So फर्स्ट गर्ल ने स्टार्ट करा. दैट उन्होंने खुद ही बोला, मैम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द टॉपिक. Then ma'am said okay, even not introducing herself, she just answering the question like, ma'am I would like to choose a dog. So ये था उनका आंसर, I would like to choose dog, and काफ़ी उतना याद नहीं मुझे. सो यही था, इतना याद है. देन मैं सारी गर्ल्स बैठी थी. देन सोच रहे थे, वी आर जस्ट थिंकिंग दैट क्या बोले बिकॉज इट वॉज अ सडन क्वेश्चन एंड वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड दैट हाउ टू आंसर. एंड वो आई वॉज थिंकिंग कि क्या बोलूँ, और जब सारी गर्ल्स चुप थी आई वॉज लाइक कि मैं इनिशिएट कर देती हूँ. इट वॉज अ गुड इम्प्रेशन ऑल्सो. सो मैंने थोड़ा थिंक करा, बहुत ज़्यादा कहते यार आज तो हो जाए. सो आई वॉज थिंकिंग. देन
मे बी 10 सेकेंड लिए होंगे मैंने मैक्सिमम आफ्टर दैट गर्ल. Then I was like, ma'am, I would like to start the topic. So first, introduce yourself, guys. Firstly, don't answer the question because सबसे पहले आप आंसर करने लग जाओगे. इंट्रोड्यूस कर दो, थोड़ा सा करो. ये नहीं कि पूरा आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पूरा बता रहा मेरा नेचर ये नहीं. नॉर्मल इंट्रोड्यूसिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल, hello, I am Khushi. I live in Delhi itself and currently I am pursuing BA Honors in Political Science. नॉर्मल है, काफ़ी इजी है, इतना आप बोल सकते हो. या फिर ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो. मैंने जैसे स्टार्ट करता मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ. मॉर्निंग लेडीज प्रेजेंट ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग मैम, एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई टॉपिक. फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग से स्टार्ट करना है. By getting a chance, then it will be a lion. If I getting a chance to change the national animal, because lion is as similar to tiger, I find. And also apart from this, my favorite team is CSK, which represent lion and repeatedly win also, like 5 times they win the title. And it was a good thing to change the national animal into a lion, as I really like CSK also. So this was my answer, because sudden जो क्वेश्चन था उसका आंसर करना काफ़ी ज़्यादा ट्रिक होता है, मतलब ट्रिकी होता है. एंड जितना आता है उतना आप करेक्टली बोलो. ज़्यादा लंबा भी मत रखो, अगर नहीं आता शॉर्ट रखो. ग्रुप डिस्कशन है, पर अगर आप देख रहे हो कि कोई बोल नहीं रहा तो आप ज़्यादा मत बोलो. ज़्यादा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब यू आर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे. शॉर्ट रखो और बोल दो नॉर्मल. सो जो दूसरी गर्ल थी उन्होंने बोला था, मैं आपको बता देती हूँ, जो सिलेक्ट हुई थी दैट वाज माय फ्रेंड आल्सो. सो मेरी फ्रेंड थी. तो शी वाज आंसरिंग दैट मैम आई वुड लाइक टू चेंज इनटू एलिफेंट, एज एलिफेंट रिप्रेजेंट लॉर्ड गणेशा. सो उन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर करा था, वो भी सिलेक्ट थी. और एक और गर्ल थी, उनका मेरे को रिमेंबर नहीं है. एंड तो हम लोग सिलेक्ट हो गए थे ऑन दैट टाइम, एंड वी वर रियली एक्साइटेड लाइक फॉर नेक्स्ट राउंड एंड फॉर ऑल्सो लाइक कि आज सिलेक्शन हो जाएगा. हम जब गए वहाँ पे मेडिकल राउंड्स के लिए, वी वर वेटिंग. तो ये मैंने आपको बता रखा था मेडिकल राउंड्स में क्या हुआ था. सो मेडिकल राउंड्स में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ दैट मेडिकल राउंड्स के लिए आप सबसे पहले तो अपना नेसेसरी रखें सारी डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी योर कॉपीज़ लाइक पासपोर्ट कॉपी, पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपीज़. ये सारी चीज़ें आप कैरी कर ले क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वो मांग लेते हैं फॉर अटैचिंग समथिंग इंपॉर्टेंट थे. और जो 4th राउंड था वो भी मैं आपको बता देती हूँ. 4th राउंड नॉट 3rd राउंड. कई लोगों ने मेरे को कमेंट करा है. आई वॉज ऑल्सो मेकिंग एन अनदर वीडियो ऑन दैट कमेंट, लाइक क्या क्या चीज़ें वो जो पूछ रहे हैं वो मैं आपके लिए डेफिनेटली बनाऊंगी आफ्टर दिस वीडियो. सो जो 3rd राउंड था, 3rd राउंड मैंने लास्ट वीडियो में बोला था फाइनल राउंड था. सो दैट वाज नॉट फाइनल राउंड. आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड बिकॉज कई लोग का 3rd राउंड में जो कई कैंडिडेट्स थे आउट देयर, उनका जो बैच था रेड कलर का मिल रहा था, तो उन पे फाइनल आ गया था. सो आई वाज थिंकिंग कि वो सिलेक्ट हो गए फाइनल, तो उनका फाइनल हो गया था मीन्स वो डायरेक्टली सिलेक्ट हो गए होंगे मे बी. कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे इतना नहीं पता बिकॉज आई गॉट रिजेक्टेड ऑन दैट राउंड. सो जब मैं गई 3rd राउंड में, सो PI राउंड था, पर्सनल इंटरव्यू राउंड. सो देन उन्होंने पूछा दैट हेलो खुशी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सो सबसे पहले तो मैंने ग्रीट करा क्योंकि ग्रीटिंग इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन आई वॉज ग्रीटिंग देम एंड देन उन्होंने बोला हेलो खुशी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. देन आई वॉज आंसरिंग दैट. इंट्रोडक्शन के बाद मेरा था नॉर्मल इंट्रोड्यूस करा उसमें मैंने. देन उन्होंने बोला ओके क्या आपने पहले वर्क कर चुके हो. देन आई वॉज आंसरिंग या मैंने करा है 1 month आई हैव डन काउंसलिंग. सो उन्होंने बोला ओके टेल मी अबाउट विच थिंग यू लाइक इन दैट काउंसलिंग, लाइक कोई पॉजिटिव पॉइंट बताना था कि क्या है. देन आई वॉज आंसरिंग द वर्क एनवायरमेंट वॉज रियली ग्रेट एंड एट द सेम टाइम दे वर सपोर्टिंग, बट आई लेफ्ट दैट जॉब बिकॉज आई डिड नॉट गेट इनफ टाइम फॉर द इंटरव्यू. सो मैंने ये बोला था. एंड ये थोड़ा सा दिमाग से आपको आंसर करना है क्योंकि जब मैंने आंसर करा जो मेरे को आया मैंने कर दिया उस राउंड में. सो वहाँ पे मेरे को आंसर अब मुझे लगता है जैसे मुझे करना चाहिए था, जिस वजह से मैं रिजेक्ट हुई. दैट वर्क इन्वायरमेंट अच्छा था, लाइक पॉजिटिव पॉइंट में आप पॉजिटिव ही बताओगे. बट सो कई लोग थे जो सिलेक्ट हो गए थे PhD के लिए. वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर सिलेक्टेड फॉर PhD. आई वॉज ऑल्सो हैप्पी ऑन दैट टाइम बिकॉज जब सिलेक्ट हुए थे आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि क्या क्या क्वेश्चन था आगे के लिए. सो उनसे मैंने पूछा था
लगता था दैट उसके बाद जो राउंड था, 4th राउंड था, उसमें मैं तो आ गई थी वापस. आई जस्ट वेंट बैक टू माई होम एंड थोड़ा सा बुरा लग रहा था, ज़्यादा भी नहीं, मतलब लग रहा था, ठीक है. एंड देन माई फ्रेंड सेड दैट 4th राउंड में उनको यही इंट्रोड्यूस करा, वाई यू वॉन्टेड टू बिकम अ कैबिन क्रू, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन एविएशन इंडस्ट्री. सो ये सारे क्वेश्चंस थे 4th राउंड के लिए. तो 4th राउंड में वो सिलेक्ट हुए थे PhD के लिए. सो जब वो सिलेक्ट हुई PhD के लिए, आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड कि क्या हुआ. देन हम लोग की बात हुई एंड काफ़ी अच्छा था, तो वो सिलेक्ट हो गई लकली. एंड यही था मेरा 3rd टाइम एक्सपीरियंस इन एयर इंडिया. दैट्स ऑल. इससे ज़्यादा कुछ अगर जब मैं जाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी. अभी तक मेरा 3rd टाइम ही हुआ है एयर इंडिया में. इसके बाद मैं गई नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स. एज यू नो, इन दिल्ली देर वॉज हाई रेनिंग एंड रेनिंग की वजह से काफ़ी जो इंटरव्यू था वो ड्यू होते जा रहा है एंड उसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ. दिस इज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई वीडियो. सो सी या.